क्या दरवाजा में? Okay, namaste to all of you. What about my audio? Is it fine, or do I need to change to some other settings? No, sir, it's fine. Fine, sir. Yes, yes. So today I'm going to discuss about disjoint set operations, and let me start with sharing my screen. Okay, yep. So we people all have a basic idea of set operations, and today I'm going to show it by an example or by using the algorithms, right? So, so today the topic that I'm going to cover is disjoint set operations, and in disjoint set operations, the three fundamental operations we are going to use, that is make set x. Make set x, what does it do? It creates a new set whose only member is x. Right. It means I've created a set whose only member is x, and for sake of convenience, I'm saying it that it is also it's a representative. That representative of a set means that is representative of set means like a cluster. Somebody is like a cluster head, or in a class, it's like a monitor, right? So make set x creates a new set with element x, and it is also going to be a representative. Right. Union x comma y means that uh, it unites two sets whose representative of x and y. And find set x, what does it do? Find set x is uh, returns to the pointer to the representative. Whatever is the representative of that set, it will represent find set x, right? So let me take example for better understanding. And suppose this is a graph, and before discussing these operations, let me discuss an algorithm that is telling me that whether the components of graph are connected components or not connected component. So for this, I have two algorithms. First algorithm is connected component G. In this, what I'm doing for each vertex V that belongs to set of vertices, I am making a make set V.
right? Then after that, for each edge that belong to set of edges, I am I am comparing whether find set U and find set V are same. If not, then I'm making union of it, right? So it may be possible you are not able to understand a bit of it. That is a perfectly normal thing. So let me take an example for you. Yeah. So in the first step, what I'm going to do for each vertex of a graph, just remember that algorithm. In that algorithm, what I'm doing, same connected component. For each vertex of this graph, I am making a set of each element. What I'm doing, I'm making a set of each element, right? So back to class nursery, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J are vertices. So I am making the set of each vertex, set A, set B, set C, set D, set E, set F, set G, set H, I, J. Right? Comfortable? Yes, sir. For each vertex, make set V. Right? So make set, अभी ऑपरेशन क्लियर हो गया होगा. मेक सेट में हम लोग क्या कर रहे हैं, मेक सेट में जो भी हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं उसको सिंगल एलिमेंट का सेट बना दे रहा है. हमने यहाँ पे वर्टिसेस पास किए, सिंगल एलिमेंट का सेट बन गया. डन. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ की हर एज को चेक कर रहे हैं. ठीक है, तो एक एक करके हर एज को चेक करेंगे. सबसे पहले हमने जो एज चेक की, बी डी चेक की. सबसे पहले जो हमने एज चेक की, जो चेक की बी डी. ठीक है, तो इसके बाद हम बी डी चेक करते हैं. बी डी चेक करने के बाद हम चेक करते हैं, फाइंड सेट बी निकालेंगे और फाइंड सेट डी निकालेंगे. अगर वो दोनों बराबर नहीं है तो उन दोनों का यूनियन कर देंगे. फाइंड सेट बी देखा, तो फाइंड सेट बी मुझे इस सेट में मिला. बी तो इस सेट का एलिमेंट है. फाइंड सेट डी मुझे इस सेट में मिला. दोनों अलग अलग सेट के एलिमेंट है. इसका मतलब फाइंड सेट बी और फाइंड सेट डी बराबर नहीं है. फाइंड सेट क्या रिटर्न करता था, उस सेट के रिप्रेजेंटेटिव को बेसिकली रिटर्न करता था, राइट? तो फाइंड सेट बी और फाइंड सेट डी डिफरेंट सेट्स में है. इट मींस इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है, हम दोनों का यूनियन कर सकते हैं. तो बी और डी को हमने एक ही सेट में रख लिया. डन. क्लियर हुआ ये ऑपरेशन? देखिए, अगर फाइंड सेट एक एज उठाई हमने, फाइंड सेट यू और वी बराबर नहीं है, तो हमने इन दोनों का यूनियन कर दिया. क्लियर? आगे बढ़ू? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू. इसके बाद जो हमने एच ली, ई और जी ली, ई जी ली, तो हम फाइंड सेट ई निकालेंगे, फाइंड सेट जी निकालेंगे. तो फाइंड सेट ई मुझे यहाँ मिलेगा, फाइंड सेट जी मुझे यहाँ मिलेगा. दोनों अलग अलग सेट में हैं. दोनों अलग अलग सेट में होने का मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर नहीं है. दोनों बराबर नहीं होने का मतलब क्या हुआ, हम इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, Yes, sir. राइट? अगली एज जो मैंने प्रोसेस की, दैट इज ए सी. हमने फाइंड सेट ए किया, फाइंड सेट मुझे ए मुझे यहाँ मिला, फाइंड सेट सी मुझे यहाँ मिला. दोनों अलग अलग सेट में हैं, दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हम दोनों का यूनियन कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट एच जो मैंने प्रोसेस की, एच आई प्रोसेस की. फाइंड सेट एच निकाला, फाइंड सेट एच मुझे यहाँ मिला, फाइंड सेट आई मुझे यहाँ मिला. दोनों अलग अलग सेट में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों का यूनियन परफॉर्म कर सकता हूँ. तो मैंने दोनों का यूनियन परफॉर्म कर दिया, राइट? अगली एच मैंने ली ए बी. फाइंड सेट ए मुझे इस सेट में मिला, फाइंड सेट बी मुझे इस सेट में मिला. दोनों अलग अलग सेट हैं. जब भी दोनों अलग अलग सेट होते हैं, दोनों का हम यूनियन कर सकते हैं, ए बी सी डी, राइट? अगली एज जो मैंने प्रोसेस की, ई एफ की. क्यों मैं अगली अगली एज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर एक एज को प्रोसेस कर. अगली एज मैंने ई एफ की. ई मुझे यहाँ मिला, एफ मुझे यहाँ मिला. दोनों अलग अलग सेट में हैं, दोनों को हम यूनियन कर सकते हैं. डन. अगली एज मैंने ली बी सी. बी मुझे यहाँ मिला, सी मुझे यहाँ मिला. दोनों के रिप्रेजेंटेटिव एक है, फाइंड सेट बी और फाइंड सेट डी सी. दोनों बराबर हैं,
तो कंडीशन फेल हो गई तो हम यूनियन ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली जब हम सब कुछ करके इज्जत से बाहर आए तो हमें 4 कंपोनेंट मिले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये, भाई हम निकालना क्या चाह रहे थे? हम कनेक्टेड कंपोनेंट ग्राफ के निकालना चाह रहे थे। तो इन आंखों से देखोगे तो ग्राफ के कनेक्टेड कंपोनेंट यही तो है। ए बी सी डी एक कंपोनेंट है, ई एफ जी एक और कंपोनेंट है, एच आई एक और कंपोनेंट है, जे एक और कंपोनेंट है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये सब कंपोनेंट है। क्लियर? कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लीजिए। बोलिए कुछ। No doubt. ठीक है, थैंक यू। सो with due your permission, I'm moving forward, and so next topic that I'm going to start is spanning tree algorithms. So in these spanning tree algorithms, I have to make use of these disjoint set operations. So can somebody tell me why spanning tree algorithms are used? Because people must have studied this topic in your data structure curriculum. Why spanning tree algorithms are used? सर स्पैनिंग ट्री मतलब जैसे हमें कहीं पे ट्रैवल करना है तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा मिलेगा, या फिर मतलब उसका तो रियल लाइफ एप्लीकेशन के एग्जांपल से मैं बता सकता हूँ सर। नहीं, अगर तुम जो बोल रहे हो तो इसका मैं काउंटर आर्गुमेंट ये दूंगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्लास ऑफ एल्गोरिथम क्यों पढ़े? अगर कहीं ट्रैवल करना है तो उसके लिए सिंगल चोर शॉर्टेस्ट पाथ क्लास ऑफ एल्गोरिथम पढ़ी, सिंगल डेस्टिनेशन पढ़ी, वन पेयर शॉर्टेस्ट पाथ पढ़ी, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ पढ़ेंगे, तो फिर स्पैनिंग ट्री का यूज किया हुआ। समझ गए ना? मैं आपने जो बोला उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ सर, ठीक है, सोच चलिए। रहे सर। हाँ, और कुछ सोचिए। चलिए मैं बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी अच्छा, अटेंडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज कौन लेगा? अब्दुल अब्दुल आप कर चुके हो ना? यस। ये अभय मिश्रा मुझे आज फर्स्ट टाइम दिख रहा है। अभय, आज अटेंडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। 37 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो 37 प्रेजेंट होने चाहिए, रेस्ट एब्सेंट होने चाहिए, तो मुझे एब्सेंट लिस्ट चाहिए। अभय, इज इट क्लियर विद यू? Abhay, is it clear with you? I think Abhay just logged in and went somewhere else. So control passes to next index. Abhishek Sharma. Abhishek Sharma. Are you there? Seven and 10 are absent. आकांक्षा आप कर चुके हो, आदित्य आप भी कर चुके हो। आकांक्षा पांडे आपने किया है? No, sir. तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अटेंडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उठा लीजिए। मैंने नंबर बता दिया, 37 प्रेजेंट होने चाहिए, इसमें 2 और 7 और 10 दोनों को एब्सेंट कर दीजिएगा। रिस्पॉन्स नहीं किया Okay, मेरी sir. बात। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं।
स्पैनिंग ट्री क्यों यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ये सब बातें बाद में देखेंगे। पहले छोटा सा एल्गोरिथम देख लेते हैं। जेनरिक एमएसटी की बात करते हैं। बेसिकली मैं एमएसटी का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं यहाँ पर डिस्कस कर रहा क्योंकि ब्रीफ आइडिया ये है कि हमें क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका ये लिया था कि मान लीजिए आपको नई लैब सेट करनी है, तो आप ये चाहोगे कि मिनिमम वायर यूज हो और सारे जो कंप्यूटर से वो कनेक्टेड हो। तो अगर हम इसे ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ग्राफ के जो वर्टिसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, कंप्यूटर्स हो जाएंगे। जो एजेस की लेंथ हो वो वायर हो जाएगा। तो आप इस तरह से ग्राफ के सारे वर्टिसेस को कनेक्ट करना चाहते हो। ऑल द वर्टिसेस शुड बी कनेक्टेड so that minimum wire length should be used, minimum cost length will be used. So that is the basic idea of minimum spanning tree or spanning tree means हम सब vertices cover कर लें और कम से कम distance traverse करें। ठीक है। तो और एक चीज और है कि स्पैनिंग ट्री के कॉन्सेप्ट में साइकिल नहीं बनने देते हैं। जब भी ग्राफ को हम ट्रेवर्स करेंगे कहीं भी साइकिल नहीं बनने देते हैं। तो एक ऐसी है जिसको इंक्लूड करने से साइकिल नहीं बनती है, उसको हम सेफ एज कहते हैं। ठीक है। सेफ एज जेनरिक मिनिमम स्पैनिंग ट्री की एल्गोरिथम हम देखते हैं। इसमें हमने पास किया है ग्राफ जी, वेट मैट्रिक्स डब्ल्यू। ठीक है। अगर ग्राफ जी और वेट मैट्रिक्स डब्ल्यू पास किया तो हमने क्या किया, a इक्वल टू 5 एक एम्प्टी सेट ले लिया। और जब तक a नॉट फॉर्म अ स्पैनिंग ट्री मींस स्पैनिंग ट्री ना बन जाए। स्पैनिंग ट्री ना बन जाने का मतलब क्या है कि ग्राफ के सारे वर्टिसेस कवर ना हो जाएं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एज फाइंड करेंगे और जो सेफ हो उस सेट के लिए। सेफ होने का मतलब क्या, साइकिल ना बने, और उस एज को हम ऐड कर देंगे, फाइनली उसको रिटर्न कर देंगे। डन। Yes, sir. क्लियर। सो दिस इज द बेसिक स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम। उसके बाद हमें दो एल्गोरिथम देखनी होती हैं, एक प्रिम्स और क्रूस्कल। तो एक एक करके दोनों देख लेते हैं। पहले चलिए प्रिम्स दिखा देता हूँ आपको। कल डिजिक्स्ट्रा की थी तो इसलिए प्रिम्स आज दिखा देता हूँ। चलिए, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की जो प्रिम्स एल्गोरिथम है उसमें हम 3 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट आर्गुमेंट जो है वो मैं पास कर रहा हूँ ग्राफ जी, वेट मैट्रिक्स डब्ल्यू और एक डेजिग्नेटेड वर्टेक्स जहां से हम ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करेंगे। कहीं से तो ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद फॉर ईच व्यू दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ वर्टिसेस मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैरामीटर ले रहा हूँ, एक वेरिएबल ले रहा हूँ की। हर वर्टेक्स के लिए की को मैं इनफाइनाइट से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। ठीक है। और प्रेडिसेसर को निल से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ, और जहां से स्टार्ट करना है और डॉट की उसको 0 से इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ। अभी मेरा एक क्वेश्चन है, कल हम लोगों ने जो डिजिक्स्ट्रा पढ़ी थी उससे कुछ मैचिंग हो रही है इसकी, जो 3 स्टेप मैंने लिखे हैं? सर मिनिमम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नहीं, नीचे नहीं जाए, हम अभी केवल ऊपर की बात कर रहे हैं। नीचे भी यस नीचे सर, अगर ऊपर इनिशियलाइज सोर्स वाले से मैच कर रहे हैं। कल वाली एल्गोरिथम तो हम कंफर्टेबल थे ना, कुछ देर तक हम लोगों ने डिस्कस की थी, आपने क्वेश्चन भी लगाए थे, राइट? तो अच्छा, ये 1 2 3 4 लाइन क्या कुछ रिकॉल कर पा रहे हो, क्या बता रही है? यस सर, क्या बता रही है? सिंगल सोर्स वाली एल्गोरिथम से मैच कर रही है। थोड़ा और इलैबोरेट करिए, आप बहुत करीब हैं, थोड़ा सा और। सर वो इनिशियलाइज सिंगल सोर्स वाला जो फंक्शन था वही तो है शायद। वेरी गुड, वेरी गुड। ये वही फंक्शन तो है, मैंने दूसरे टर्म्स में लिख दिया है। ये वही फंक्शन तो है। मैंने क्या किया, इनिशियलाइज सिंगल सोर्स में क्या करते थे, ग्राफ के हर वर्टेक्स के
शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट को इनफाइनाइट से इनिशियलाइज करते थे, तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट को हम की बोल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, की को इनफाइनाइट से इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और जो सोर्स है उसके लिए शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। परफेक्ट, गुड। आप लोग इसको पहचान पाए, सीएस वाले बच्चे इसको बता नहीं पाए थे। चलिए, वेरी गुड। ठीक है, तो वही हम काम कर रहे हैं कि हमने की वैल्यू को सोर्स को छोड़कर सबके लिए इनफाइनाइट से इनिशियलाइज कर लिया, राइट। उसके बाद मैंने क्यू ली, वहां पर भी एक क्यू ले रहे थे, मैंने वहां क्यू ली, क्यू में ग्राफ के सारे वर्टिसेस इनपुट कर दिए। फिर हमने क्या किया, जब तक क्यू नील नहीं जा रही है हमने मिनिमम वर्टेक्स को निकाला। मिनिमम वर्टेक्स क्या, शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट को वहां निकाल रहे थे, यहाँ पर की को निकालना है, ठीक है। उसके बाद उस वर्टेक्स के जितने भी एडजेसेंट वर्टेक्स है, इधर देखिए, उस वर्टेक्स के जितने भी एडजेसेंट वर्टेक्स है वो अगर क्यू में बिलोंग करता है और वेट ऑफ एज की वी की से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, वी की को नया वैल्यू असाइन कर देंगे। क्या कुछ ऐसा ही है कि आप मुझे बेहतर शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट मिल रहा है तो हम नया शॉर्टेस्ट पाथ एस्टिमेट ले लेंगे? यही तो कर रहे थे कि वे डी यू प्लस वेट ऑफ यूवी अगर कम होता था तो हम यही तो करते थे कि डीवी को हम वेट ऑफ यूवी प्लस डी यू से चेंज कर दे रहे थे। सेम ही चीज तो है, ये दिख रहा है? यस सर, थोड़ा सा यस सर। बिल्कुल सेम चीज है, इसीलिए कल के बाद आज मैं इसको यही इस जानबूझ के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एक असाइनमेंट मैं आप सबको दे रहा हूँ, एक पेपर के बीच में लाइन खींचिएगा, एक तरफ लिखिएगा डिजिक्स्ट्रा शॉर्टेस्ट पाथ क्लास ऑफ एल्गोरिथम, दूसरी तरफ लिखिएगा प्रेम, ठीक है। एल्गोरिथम लिख लीजिएगा एज इट इज, उसके बाद एक क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर अपनी लाइन, अपने मन से 2 लाइन का कमेंट लिख लीजिएगा, क्या सिमिलरिटी है, क्या डिससिमिलरिटी है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, दोनों का कंपैरिजन। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छे अच्छे इंटरव्यू में, ठीक है। चलिए, ये समझ गए क्या करना है, कल ही जैसी बात है, तो एग्जाम्पल सीधे सीधे एग्जाम्पल किया जाए। यस सर। चलिए यस सर। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ग्राफ के हर वर्टेक्स के लिए की को इनफाइनाइट इनिशियलाइज कर लेना है, और जिसको हम सोर्स बना रहे हैं और उसके लिए 0, तो कर लेते हैं। इसके लिए 0, बाकी सब के लिए इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, ठीक। इनफाइनाइट चंपक वाली एल्गोरिथम में भी तो यही करते थे, एक एरे बनाते थे, उसमें सबको इनफाइनाइट लिख लेते थे, यही तो करते थे, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक क्यू ले रहे हैं जिसमें ग्राफ के सारे वर्टिसेस को इनपुट कर दे रहे हैं, तो ग्राफ के सारे वर्टिसेस को क्यू में इनपुट कर दे रहे हैं, लिख लीजिए भाई, क्यू ले लीजिए, क्यू क्यू ले लीजिए, क्यू। नर्सरी में आ जाइए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और सबके लिए की वैल्यू लिख लीजिए, ए के लिए 0, बाकी सबके लिए इनफाइनाइट। ऐसा ही तो हमने किया है, राइट। उसके बाद हम इसकी मिनिमम वैल्यू को निकाल लेते हैं, तो मिनिमम क्या मिला बताइए? 0। हाँ, मिनिमम 0 मिला, तो ए को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ए को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया।
ए को जब हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया तो हम क्या करेंगे, इसके सारे एडजेसेंट वर्टेक्स के लिए चेक करेंगे। तो इसके दो ही एडजेसेंट वर्टेक्स हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। बी एच। हाँ, बी और एच है। तो देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने दिमाग से कुछ नहीं करते, जो एल्गोरिथम कहती है। फिर हमने फॉर ईच हमने क्या किया, अगर वो वर्टेक्स क्यू में बिलोंग करता है और वेट ऑफ यूवी का वी की से कम है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वेट ऑफ क्यू में नया असाइन कर देते हैं। तो देख लो यार, नया असाइन कर लेते हैं। चलो इधर चलते हैं पहले। ये ए है, 0 है, ये बी है, ये 4 है। तो बी का भी इनफाइनाइट है, तो ए बी का वेट 4 है, ये इनफाइनाइट है। तो कंडीशन क्या कह रही है कि अगर बी क्यू में बिलोंग करता है, बी क्यू में बिलोंग करता है और वेट ऑफ ए बी आपकी की से कम है, तो इसको आप क्या कर दोगे, की वैल्यू, बी की वैल्यू को क्या कर दोगे, 4। यही तो कर रहे हो। तो बी की वैल्यू को आपने 4 कर दिया। ये स्टेप समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, इसी तरह अब आगे देखते हैं एल्गोरिथम हमारी क्या कह रही है, हमें क्या करना है। फॉर ईच करते हैं ना, तो अगले एडजेसेंट पे आ जाओ। अगले एडजेसेंट में देखो क्या हो रहा है। अरे भाई कौन तंग कर रहा है, एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी सुनील जी बताइए। नमस्कार। नहीं नहीं, मैं क्लास में था इसलिए मैं उठा नहीं पाया। ठीक है, मैं अभी देख के पेमेंट कर देता हूँ। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। बताइए जब मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँ। हाँ बताइए सर। बेनिफिशियरी ऐड नहीं हो रहा, लेकिन स्विफ्ट पे से हो जाएगा तुरंत, मैंने देखा था। आईपीएल, ठीक। ठीक ठीक। ठीक, मैं कर 1 घंटे में हो जाएगा, मेरी क्लास चल रही है ना। क्लास चल रही है, फिर मतलब मैं जैसे आपका फोन आ रहा था, आप किसी और का होता तो मैं उठाता ही नहीं। ठीक है। ओके। सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, राइट। तो इसी तरह से हम अगली एज को लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, लेते जाएंगे, और फाइनली हम इस स्पैनिंग ट्री को पूरा इस तरह से कवर कर पाएंगे। तो एक बार आप पेन और पेपर से अटेम्प्ट करके देखो, यही वाली फिगर ले लो। करना है नहीं करना है, मन है नहीं है कि अज्यूम कर लें? अगर करना चाहो तो आप कर लो, मैं तो चाहता हूँ एक क्वेश्चन कर लो, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। फिर वही तरीका वही है, सामने एल्गोरिथम रखो, अपना दिमाग नहीं यूज करना है, उसको प्रिजर्व करके रखो। ठीक है, जो ये कह रहा है हम करते जाएंगे, करते जाएंगे। कोई डाउट है आपसे, आप डिस्कस करिए, किसी स्टेप पे जाके फंसिएगा। ठीक है, एक बार कर लोगे, दोबारा करना भी नहीं पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। ठीक है, तो कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, नहीं करना चाहिए तो जैसा बताइए आप लोग। सर एग्जांपल शो करिए। एग्जाम्पल मैं शो कर दे रहा हूँ।
ठीक है, करने का तरीका वही है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, एल्गोरिथम लिख लो, सामने जो एल्गोरिथम कहते जाए करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, यही वाला यहाँ से स्टार्ट करिए, ए को सोर्स लेके। और जो लोग जिस स्टेप पे फंस जाए मुझसे डिस्कस करिए कि सर यहाँ पर मैं फंस गया हूँ, मुझे बताइए। सर हाँ जी, बताइए बेटा। एल्गोरिदम शो कर दीजिए। अच्छा, एल्गोरिथम आप शो कर रहे हो, ओके, मैं कर दे रहा हूँ। एक मिनट, कहाँ गई भाई एल्गोरिथम? एक मिनट एक मिनट, क्या हो गया? और शेयर, स्टॉप शेयर, शेयर स्क्रीन। ये अभी दिख रही है आप लोग को एल्गोरिथम? यस सर। ओके ओके, पहली बार में टाइम लेना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटा लीजिए, 1 घंटा लीजिए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से करिए। अच्छा, इसका तो आइडिया होगा ना इंडेंटेशन क्या होता है? फॉर के बाद हमने ये थोड़ा सा गैप देके लिखा है, इसमें गैप नहीं दिया है, ये इसका मीनिंग क्लियर है आपको कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, वेरी Yes, गुड। sir. इट्स सेम एज कर्ली ब्रेस, राइट?